قومی شاہراہ پر رامبن کے کیلا موڑ کے مقام پر بارڈر روڈز آرگنائزیشن کی جانب سے بیلی برج کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ پل کی تعمیر کے لیے ساز و سامان گزشتہ شام پہنچانے کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ BRO کے اعلیٰ افسران، انجینئرز کے علاوہ تمام ورکنگ سٹاف شاہراہ کی بحالی کے لیے پل کی تعمیر کے کام میں شد و مد سے لگے ہوئے ہیں۔ لگاتار 5ویں روز بھی قومی شاہراہ ٹریفک کی نقل و حمل کے لیے بند ہے۔ CPPL کی جانب سے منہدم دیوار کو اثر نو تعمیر کرنے کا کام جاری ہے۔ لوگوں کا الزام ہے کہ مسافروں سے من مرضی کا کرایہ وصول کیا جا رہا ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں میں زیادہ تر چھوٹی مسافر گاڑیاں شامل ہیں۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بسوں کے ذریعے سفر کو ترجیح دیں اور مقرر شدہ کرایہ ہی ادا کریں۔ کسی بھی مشکل پر پولیس کنٹرول روم، موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ یا ٹریفک پولیس سے رابطہ قائم کریں۔ یہ برج ابھی ہم نے شروع کیا ہے آج صبح، اس کا ہم نے سیٹنگ آؤٹ اور لے آؤٹ کیا ہے۔ ایز یو کین سی اس وقت ہم اس کا نوز لانچ کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے دو ایکسپیکٹڈ ٹائم از اباؤٹ 3 days بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ ایز ارلی ایز پاسبل اینڈ مے بی another between 24 to 48 hours we'll be able to make the traffic through on this. ابھی آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں ہمارا برج کا لانچ ابھی انڈر پروگریس ہے اور یہ کافی ٹائملی چل رہا ہے۔ کوشش یہی رہے گی کہ ہم لوگ ٹائم سے برج لانچ کر دیں اور جلدی ٹریفک پر ریسٹور ہو جائے۔ ورکنگ ٹیم ہماری ساری ٹرینڈ مین پاور ہے ہماری، اور جیسے جیسے ہم لوگ برج پیچھے بناتے جائیں گے تو یہ راؤنڈ دا کلاک چلے گا سر؟ یہ راؤنڈ دا کلاک چلے گا کام؟ راؤنڈ دا کلاک چلے گا جب تک یہ برج لانچ ہوتا ہے، ہم رکیں گے نہیں۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ بند رہنے کی وجہ سے مختلف مقامات پر ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں درماندہ ہے۔ قاضی گنڈ اور جواہر ٹنل کے بیچ بھی مال بردار گاڑیوں کی ایک بڑی تعداد درماندہ ہے۔ درماندہ مسافروں کو شدید سردی کے ساتھ ساتھ مختلف مسائل کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے ان کی امداد کے لیے کوئی خاص اقدام نہیں اٹھایا جا رہا۔ مسافروں نے قومی شاہراہ کو جلد بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ضلع انتظامیہ اننت ناگ اور دیگر غیر سرکاری تنظیمیں درماندہ مسافروں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے کے لیے کئی روز سے سرگرم ہیں۔ ٹیمپریچر رات کو تو اتنی سردی ہوتی ہے نا، تو پوچھنے والا ہے نہیں، کیا کریں گے، پھنسے پر ہم تو چلو بٹول سے ہیں، تو کچھ لوگ ہمارے بھائی باہر سے ہیں تو ان کو بھی اتنی تکلیف جھیلنا پڑتی ہے۔ بہت برا حال ہے، راستے کا پسیاں گری ہوئی ہیں اور جو پل ہے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے، برا حال ہے۔ نہ ادھر کوئی باتھ روم ہے نہ لیٹرنگ ہے۔ وہ باقی جو سارے ہمارے آرمی والے جو ہیں، مطلب سپاہی وغیرہ جو افسر وغیرہ ہیں، وہ ادھر دائیں بائیں جانے دیتے ہیں۔ ہم کہاں پہ جائیں گے؟ ہمارے لیے تو بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ایسا کام کبھی دیکھا نہیں، ایسی روڈ میں کبھی دیکھی ہی نہیں ہے۔ بے شک آپ خود دیکھ رہے ہیں کنٹینیو روڈ بند رہتا ہے، کبھی 20 دن کبھی 8 دن۔ پرائیویٹ کمپنی والوں نے لوڈ رکھا ہے، وہ پرائیویٹ والوں کو دے رکھا ہے، پرائیویٹ والوں کو کوئی پتہ ہے نہیں۔ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا بہت سر، دیکھو باتھ روم کی جگہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ LG کے مشیر فاروق احمد خان کا کہنا ہے کہ جموں سری نگر قومی شاہراہ کے متواتر بند رہنے سے مسافروں کو بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بٹوت کشتواڑ سنتھن ٹاپ شاہراہ کو کھولا جائے گا تاکہ لوگوں کو مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ خان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ حالیہ زلزلے کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں اور اس سلسلے میں حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے، انہوں نے کہا کہ حکومت متاثرین کی مدد کرے گی۔ اس کی طرف بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ کچھ مشکلات ہیں وہاں پہ بھی، کیونکہ بہت اونچائی سے وہ روڈ گزرتی ہے اور وہاں پہ برف سب سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے دیکھا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کو کریں۔ البتہ اس پہ بڑی تیزی سے جو غور و خوض کیا جا رہا ہے تاکہ جلد از جلد وہ آلٹرنیٹ راستہ بھی نکل آئے، اور جہاں تک نیشنل ہائی وے 44 کا تعلق ہے، وہ بھی کچھ دنوں میں ہی اس میں بھی بیلی برج وغیرہ ڈال کے اس کو بھی تھرو کر لیا جائے گا۔ دیکھیے، اگر جب بھی ایسا کوئی قدرتی کوئی آفت آتی ہے تو سرکار جتنے بھی افیکٹڈ لوگ ہیں جن کو نقصان ہوتا ہے ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور بندوبست کرتی ہے۔ میں جیسے آپ نے بتایا، اگر ایسی بات ہے کہ کہیں پہ سرکار کا کوئی ملازم نہیں پہنچا سروے کے لیے، تو میں DC صاحب سے مل رہا ہوں، میں ان کو بتا دوں گا، اور میں آپ کو یقین دلواتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور UT کی ایڈمنسٹریشن مل کر کسی بھی ایسے معاملے میں لوگوں کی مدد ہمیشہ کرتی رہے۔ وادی کشمیر میں شدید سردی کی لہر جاری ہے۔ سری نگر شہر میں گزشتہ رات رواں موسم کی سرد ترین رات تھی۔ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -8.4 ڈگری سیلسیس تک گر گیا تھا۔ منفی درجہ حرارت کی وجہ سے شہر آفاق ڈل جھیل کا بیشتر حصہ منجمد ہو گیا ہے۔ لوگوں کو ڈل میں شکارہ چلانے میں کافی مشکلات پیش آئیں۔ شکارہ کے لیے راستہ بنانے کے لیے لوگوں کو آئس کو توڑنے کی ضرورت پڑی۔
चंद एक मकामात पर बच्चों और दीगर लोगों को मुंजमद हुए डल के ऊपर चलते देखा जा रहा था। एक हिस्से पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उधर शदीद सर्दी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। कई मकामात पर पानी के नल जम गए हैं। पूरा डल लेक जम गया है। ये जो पानी है इसको कांच बन गया है। नलकों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, रात को तो पूरा ठंड था, ज़बरदस्त ठंड था, इसलिए पूरा लेक भी जम गया है। बहुत सर्दी है। नाव चलाने वाले को तो बहुत मुश्किल होता है कि रास्ता निकालना। टूरिस्ट के लिए काम जो करने वाले हैं लोग, उनको तो रास्ता निकालना बहुत मुश्किल होता है। उधर डल झील में एसडीआरएफ टीमों को भी तैनात किया गया है। इन टीमों को झील के मुंजमद हिस्से को तोड़ते देखा गया। शिकारा के लिए राह हमवार करने के लिए ये इकदाम किया गया है। इस दौरान वाटर स्पोर्ट्स कोच बिल्किस मीर को भी आज मुंजमद हुए डल की सतह पर चलते देखा गया। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डल से चलने पर मुतालिक एक एडवाइजरी जारी कर दी है। उनका कहना है कि आइस की सतह काफ़ी पतली है और इससे कोई भी हादसा पेश आ सकता है। लोगों से तलकीन की गई है कि वो मुंजमद डल पर चलने से गुरेज करें। उनका कहना है कि यहाँ चलना या दीगर सरगर्मियां अंजाम देना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। डीसी श्रीनगर ने कहा कि एसडीआरएफ टीमें डल पर लोगों के चलने पर भी नजर रखेगी। सोशल मीडिया में भी बहुत सारे लोग अपने पिक्चर्स अपलोड करते हैं लेक पे चलते हुए, वॉक करते हुए या डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हुए, जो काफ़ी डेंजरस हो सकता है ह्यूमन लाइफ के लिए, क्योंकि जैसे आप देखें सनी वेदर है और जहाँ जहाँ जो फ्रॉस्ट है मेल्ट हो रहा है वहाँ डूबने का खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसको लेके चलते हमने एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो भी वहाँ पे रैपिड एक्शन टीम है वो वहाँ पे स्टेशन की हैं, डिप्टी कमांडेंट भी वहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा एक एडवाइजरी भी हमने दी है कि जो फ्रोजन डल लेक है उस पर चलना जो है उसको मना किया गया है। एक डेंजरस एक्टिविटी ये है जिसमें लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, इंजरी हो सकती है, क्योंकि मेल्टिंग भी बीच बीच में हो रही है। तो उसको लेके जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, कंसर्न जो पुलिस स्टेशन हैं, वो भी मजिस्ट्रेट्स भी अलर्ट पे हैं इसको देखने के लिए, और टीम्स भी हैं, कहीं कोई हादसा हो जाता है या ऐसा कोई इंसिडेंट होता है। डीसी ऑफिस बारामुल्ला के बाहर आंगनवाड़ी वर्करों ने खामोश एहतजाज किया। एहतजाजियों ने उनकी कई महीनों से वाजिबुल अदा उजरतें वागुजार करने की मांग की है। एहतजाजियों ने मजीद कहा कि वो इलेक्शन, वैक्सीनेशन सर्वे समेत दीगर तमाम खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत उनकी उजरतें अदा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कई मौक़ों पर उन्हें ड्यूटी के लिए सफ़र करने तक के पैसे नहीं रहते हैं। एहतजाजियों ने जल्द से जल्द उजरतें अदा करने की मांग की है। आज मेन मकसद यही है कि हमारी जो मुश्किलात है वो ऑन रेडम है, जो हम सफ़र कर रहे हैं वो ऑन रेडम है। 2017 से यही है। आज हमारे सर के ऊपर से पानी गया। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहती हूँ कि जो हमारा ऑन रेडम है वो जल्द से जल्द रिलीज हो। प्रोग्राम ऑफिसर के पास हमारा हाल तो ऑलरेडी है, तो वो उसमें बात क्यों नहीं करते हैं? क्या हम छोटे मुलाजिम हैं इसलिए वो बात नहीं करते हैं? साबिक मेंबर असम्बली बानहाल वक़ार रसूल की क़यादत में सैकड़ों लोगों ने कस्बे बानहाल में बिजली की नाक़िस फराहमी और बानहाल बारामुल्ला रेल सर्विस को मुसलसल बंद रखने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। उनके हमरा डीडीसी काउंसलर बानहाल इम्तियाज़ अहमद खांडे और म्युनिसिपल चेयरमैन फारूक अहमद वानी भी थे। वक़ार रसूल ने कहा कि बानहाल को 20 मेगावाट की बिजली की ज़रूरत के बजाय महज 6 मेगावाट की बिजली फराहम की जाती है। बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा करके गरीब सार्फिन के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। उन्होंने कहा कि महकमे बिजली और सरकार को 7 रोज के अंदर बानहाल, खड़ी और पोगल परस्तान के इलाकों में बिजली की सप्लाई को मामूल पर लाने का मुतालबा किया है। उन्होंने मुतनब्बे किया कि बसूरत दीगर वो बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू करेंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने के अपने वादे को मजीद ताखीर के बगैर पूरा करें। वकील ने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली में ताखीर से यहाँ के लोग मजीद अलग थलग पड़ जाएंगे। वो नौपूरा कलां सोपोर में पार्टी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक जानिब मरकज स्टेटहुड के वादा बंद है, दूसरी जानिब एलजी इंतजामिया कवानीन तब्दील और उसमें तरमीम कर रही है जो कि इसके मैंडेट से बाहर है। वकील ने कहा कि जम्मू कश्मीर कैडर को खत्म करना और जेके सिविल सर्विसेज इम्तहान की अहलियत के लिए उम्र की हद में कमी से मरकजी हुकूमत की लोगों के तई गैर संजीदगी का पता चलता है। वकील ने कहा कि दफा 370 और 35 की बहाली के लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी।
एनसी के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि हालिया डीडीसी चुनावी नताइज से पता चलता है कि एनसी का वजूद न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू, राजौरी, पुंछ और दीगर अजला में भी है। राजौरी में पार्टी रैली में शिरकत के बाद न्यूज 18 से बात करते हुए देवेंद्र राणा ने कहा कि डीडीसी चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आगे और मजबूत होगी और आने वाले इम्तहान जो भी होंगे उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे जोर के साथ अपना लोहा दिखाएगी और लोगों का एतमाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में है और लोगों को ये यकीन हो गया है 6 साल की इनकी हुकूमत देखने के बाद कि ये लोग जो हैं सिर्फ नारों पे यकीन रखते हैं और लोगों के काम नहीं करते हैं। और जो जम्मू कश्मीर की खास तौर पे भाजपा की नेतृत्व है वो पूरी तरह से विफल हो गया है। मैं समझता हूँ आज भाजपा का वर्कर भी इस बात से परेशान होगा कि जम्मू कश्मीर का जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। मुहाजिर परिंदों के नकल मकानी के मौके पर बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन राशिद नक्काश ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए इस इम्कान का इजहार किया। नक्काश ने कहा कि कश्मीर में अभी तक बर्ड फ्लू का कोई केस सामने नहीं आया है, ताहम बाज परिंदों की मौत और उनके मामूल के बरखिलाफ बर्ताव की इतलात मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि परिंदों के नमूनों की जांच की जा रही है। नक्काश ने कहा कि उनका महकमा पूरी तरह चौकस है और तमाम गाइडलाइंस पर अमल किया जा रहा है। वादी के मुख्तलिफ आबी पनागाहों में इस वक्त 8 लाख से ज्यादा मुहाजिर परिंदे पाए जाते हैं। इस सिलसिले में जो ये मूवमेंट पैटर्न्स इनके होते हैं उससे काफ़ी हद तक जो है ये इसका ख़तरा रहेगा और हम लोग इंशाल्लाह इस चीज़ के लिए लाइव हैं। हम लोग इनके मॉनिटर करते रहेंगे और जब भी इनवर्ड या आउटवर्ड माइग्रेशन स्टार्ट होगी तब ज़्यादा ये बढ़ेगा। आपका कहना बिल्कुल सही है और उस वक्त जो है हमारा अमला ज़्यादा इनकी मूवमेंट्स पे मॉनिटर करते रहेंगे और ऐसा कोई भी इस तरह से सामने आता है अबनॉर्मल बिहेवियर या कोई इस तरह से बर्ड्स जो है शो करेंगे तो हम इमीडिएटली एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है इसके लिए जो नोडल डिपार्टमेंट है उनको इन्फॉर्म करेंगे फॉर फर्दर फ्यूचर कोर्स। देखिए हमारे वेटलैंड्स में तो कोई ऐसा अभी तक नहीं हुआ जो माइग्रेटरी बर्ड्स के साथ रिलेटेड हो, लेकिन कुछ रेजिडेंट बर्ड्स के जैसे क्रोज या कुछ काइट्स में कुछ ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर देखा गया है, लेकिन उनका भी सैंपल लिया गया है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट इज़ वेरी मच लाइव टू दिस, उन्होंने लिया है सैंपल्स। अभी पुंछ में मेडर के धराना में आग की एक वारदात में 2 मकान खाकसर हो गए हैं। लाखों रुपया मालियत का सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया है। दूर दराज इलाके में होने की वजह से जब तक फायर सर्विस ब्रिगेड जाए वारदात पहुंचता तब तक काफ़ी देर हो गई थी। मुतासरीन ने मुआवजे की अपील की है। उनका कहना है कि उनके पास आमदनी का कोई वसीला नहीं है। बातकाज़ाए इंसानियत हमारा ताउन किया जाए और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को भेजकर तो हमारा जो नुकसान हुआ है इसका तखमीना लगा के तो एक इंसानी हमदर्दी के तकाजे से हमारी मदद की जाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।